को कहना चाहता हूं, ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, रिजर्वेशन को बढ़ाने की लड़ाई है, किसानों की, मजदूरों की रक्षा की लड़ाई है, बेरोजगार युवाओं की रक्षा की लड़ाई। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को, बुद्ध भगवान के संविधान को, नारायण गुरु बसवना जी, फूले जी के संविधान को बचा रही है, संविधान की रक्षा कर रही है, और दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी जो अंबेडकर जी के संविधान को खत्म करने में लगे हैं। और मैं यहां मीडिया के सामने कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता ये कभी नहीं होने देगा, संविधान को हम कभी नहीं खत्म होने देगा। देखिए, मणिपुर में जो हो रहा है पूरे देश को मालूम है। 1.5 साल हो गए, 1.5 साल हो गए मणिपुर हिंदुस्तान का स्टेट है, मगर प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए। और मणिपुर में मैं गया हूं, मैंने अपनी आंखों से जो हो रहा है देखा है। हमारी पूरी सपोर्ट है, हमने सरकार को कहा है कि जल्दी से जल्दी हिंसा को बंद कीजिए, मगर नहीं हो रहा है। और इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट किसी का तो है। होम मिनिस्टर जी को अपना काम करना चाहिए, मगर किसी न किसी कारण होम मिनिस्टर अपने काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। मगर जो मणिपुर में हो रहा है पूरा देश जानता है, बिल्कुल गलत हो रहा है, और हिंसा को एकदम वहां पे बंद होना चाहिए। और एक बार फिर शांति आनी चाहिए। और जो मैंने कहा भारत छोड़ो यात्रा में, जो मैंने कहा 4000 किलोमीटर हम चले, कन्याकुमारी से कश्मीर, नफरत के बाजार, मोहब्बत की दुकान। हमने मैसेज दिया कि अगर आप नफरत फैलाओगे तो आग लगेगी, और बीजेपी के लोगों ने नफरत फैलाई है और इसीलिए आग लगती है। आग को सिर्फ कांग्रेस पार्टी मिटा सकती है, क्योंकि हम मोहब्बत की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, और हम नफरत को मिटाते हैं। और भाषण में मैं कहता हूं, नफरत को नफरत नहीं हरा सकती है, नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। इसीलिए हम कहते हैं मोहब्बत की दुकान। कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, बीजेपी कहती है कि कांग्रेस के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, अगर कास्ट सेंसस हो भी जाए कि कैसे रिजर्वेशंस उसको बढ़ाएगा। डू यू हैव एनी ब्लूप्रिंट? So first of all, UP and Congress came out with the idea of a caste census, and I consider it a mistake that we did not implement it then. I consider it a mistake. We have a government in Telangana and we have a government in Karnataka. We are doing a detailed exercise, a public exercise, where we are having a conversation with different stakeholders in Telangana, and we are preparing the questions of the caste census through a public discussion. We have a very clear vision for the caste census, and I guarantee you that when we implement the caste census, which we will do, as I have committed in the Lok Sabha, and we will do in Jharkhand, it will be a huge step in the transformation and the development of this country. What is the blueprint and what is the idea? It's a beautiful idea. The idea is that today 50%, approximately 50% of our population is from the OBC community. Approximately 15% is from the tribal, from the Dalit community, who have been disrespected for thousands of years, who have been called untouchables for thousands of years. And then there is the Adivasi community, 8%, who the BJP is trying to call Vanvasis. They are not Vanvasis, they are Adivasis.
right? Now, the problem is that these people do not have access to power. In fact, if I look at my media friends, look at the media companies, look at the owners of the media companies, of these communities. What is the population of Dalit community, tribal communities, OBC communities, different communities within these communities? Then we are going to do an institutional survey. So then we are going to say, okay, now what is the participation of these people in the government of India, in the institutions of India, in institutions like the Fourth Estate, media, corporate India. We're going to check where are these people. Do they actually exist? Do they have power? We are also going to check how much of India's wealth is controlled by the Adivasis. How much of India's wealth is actually in Adivasis' hands? How much of India's wealth is actually in backward OBC communities' hands? How much of India's wealth is in Dalit hands? And then we will have a blueprint. We will have what in the 21st century is called gold data. We will have the data with which to make accurate, precise decisions. We will know that when 16 lakh crores are forgiven for 25 businessmen, that is money that has come from GST, that there is not a single OBC, not a single Dalit, not a single tribal person who got that money. This will become transparent, clear, it will be beautiful. और ये मैं हर प्रदेश में कहता हूँ, जो आपने बेरोजगारी की बात उठाई, उसका मेन कारण है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने नोटबंदी की और गलत जीएसटी लागू की, और ये दो चीजें, ये योजनाएं नहीं है, ये डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं है, ये छोटे व्यापारियों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को मारने के हथियार हैं। और ये नरेंद्र मोदी जी ने इसलिए किया है क्योंकि जो छोटे बिजनेस वाले हैं, छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले जो इनोवेशन करते हैं, जो रोजगार देते हैं, वो खत्म हो जाए और अदानी, अंबानी जैसे अरबपति चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचे। तो ये नेशनल लेवल में इश्यू है और झारखंड की सरकार काम कर रही है, मगर माहौल बीजेपी के लोगों ने और पूरा स्ट्रक्चर बीजेपी के लोगों ने तोड़ रखा है। तो सच्चाई है कि हिंदुस्तान चाहे भी तो रोजगार पैदा करना आसान नहीं है, क्योंकि बैंक के दरवाजे स्मॉल और मीडियम बिजनेस के लिए बंद हैं, बैंक के दरवाजे अरबपतियों के लिए खुले हैं। 1 लाख करोड़ रुपया, 16 लाख करोड़ रुपया अरबपतियों का कर्जा माफ हुआ है, छोटे व्यापारियों का, किसान का 1 रुपया कर्जा माफ नहीं हुआ है। तो इसका मेन कारण ये है, मगर हमारे जो चीफ मिनिस्टर झारखंड के पूरा दम लगा के काम कर रहे हैं और हमारा पूरा सपोर्ट है। देखिए, एक चीज होती है ड्यू प्रोसेस, ठीक है, ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना और ड्यू प्रोसेस को तोड़ना दो अलग चीजें हैं। मुंबई एयरपोर्ट जिसका था, उस पर सीबीआई की इंक्वायरी होती है, ईडी का प्रेशर लगता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आता है, उसको डराकर धमकाकर उससे एयरपोर्ट छीनकर अदानी को दिया जाता है। हिंदुस्तान के जो बाकी एयरपोर्ट्स हैं, दूसरे बिजनेसेस को कहा जाता है कि तुम टेंडर नहीं करोगे, उनको परे कर दिया जाता है। ये लोग आते हैं हमारे पास, हमें बताते हैं, एयरपोर्ट दे दिए, पोर्ट्स दे दिए, धारावी 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन
नॉन ट्रांसपेरेंट टेंडर, मैंग्रोव की जमीन जिससे पूरी मुंबई को नुकसान होगा, वो आप ले रहे हो, क्वाइट कर रहे हो। धारावी के लोगों ने पूछा ही नहीं आपने, उनको धमका के डरा के निकाल रहे हो। ये ड्यू प्रोसेस नहीं है, ये चोरी है। हम ड्यू प्रोसेस के खिलाफ नहीं है, और हम ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि हिंदुस्तान में बड़े बिजनेसेस हैं और उनकी जगह है। अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, इनकी जगह है, मगर हम ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि सिर्फ इनकी जगह होगी। और हम ये बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि एक अरबपति को हिंदुस्तान का पूरा धन चोरी करके पकड़ा जाए। तो आप ड्यू प्रोसेस, ठीक है, जो ड्यू प्रोसेस है उसके हम खिलाफ हैं, मगर फेक प्रोसेस, धमकी, सीबीआई, ईडी, सरकार के एमएलए को, अदानी जी कहते हैं, वो महाराष्ट्र में कहा जाता है कि राजनीतिक मीटिंग में जहां निर्णय लिया जा रहा था, महाराष्ट्र को गिराने का निर्णय लिया जा रहा था, उस मीटिंग में अमित शाह बैठे थे, उस मीटिंग में अदानी बैठा था। क्यों? अदानी जी महाराष्ट्र की सरकार को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? इसके खिलाफ लोगों ने एमएलए चुने हैं। आप करोड़ों रुपए देकर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को तोड़ रहे हो। बीजेपी का